First of all, good evening, sir. Myself, Sagar Santosh Doshi. I am basically from Chhatrapati Sambhajinagar. Currently, I am working in HDFC Life Insurance Bank. Workplace is Chhatrapati Sambhajinagar. I have completed MBA in finance in 2020. Right now, I'm learning data analysis and business analytics. Thank you so much. Great. Prashant? Hello, sir. My name is Prashant Hirai. I'm from Delgon. I'm BCom student, and I'm a small business. Uh, okay, sir. Okay. Ameya? Rushike? Hi, good Okay. evening, sir. Okay. My name is Amaya, born and brought up in Pune. I've been working with OneCard, which is located in Pune, Baner. So I've been with NMD for last two months, and I'm learning like analyst course with this. Okay. Fine. Rushikesh? Good evening, sir. Rishikesh. This is Rishikesh Devendra Naik. I'm from Pune. I have completed my BCA Computer Science degree from Abasab Garbhare College from Pune, and I'm working in OneCard from 2 years. I have joined ANMD for data analyst course. Okay. Supriya? Sir, first of all, good evening, sir. Good evening. Sir, my name is Supriya Mule. I have completed my BCA in DITMS College of Aurangabad, and I have pursuing my MCA degree in MIT College of Chhatrapati Sambhajinagar. Thank you, sir. Okay. Ajay? Paresh? Yes, sir. Okay. Who's left? Sunita? Yes, sir. My name is Sunita Kohli, and I have completed my graduation in Bachelor in Computer Application. Currently, I'm working as a Senior Process Executive in Bureau Veritas India Private Limited and pursuing a data analyst course from NMD Private Limited. That's it. Thank you. Okay. Supriya? Yes, sir. Okay. Okay, fine. I think everybody is covered. So someone is wanted to join the call. Okay, fine. So my name is Rahul, and I'm having total 7 years of experience in data analysis. Okay, currently in one of a reputed company, I work as a senior software engineer. In terms of Power BI, I'm having 5 years of experience in Power BI and completed almost 5 to 6 big projects in Power BI. So, in our journey learning for the Power BI, along with this technical knowledge, also I will try to give you some practical industrial information also, which will helpful to you all when you actually join the industry. How actually works happen, what is the process to do the works. Also alongside when we cover the syllabus, afterwards we trying to touch some more concept like Microsoft Teams, what is Outlook, how we can basically how we can use those things in day to day in job activity. Again, there is concept called Azure DevOps, which is kind of a agile methodology in order to capture the day-to-day activities. So also
planning to give some knowledge regarding overview regarding those tools also. So when you join the industry, then something you need to have knowledge regarding all these things. Okay, so fine. Hindi fine is सबके लिए ना, right? Okay. So that's why मैं बेसिकली आप लोगों को जो Azure DevOps जो जिसे हम बेसिकली इसके लिए यूज़ करते हैं कि हमारी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती है इन ऑफिस में, हमें क्या काम करना है, कैसे करना है, ये सारी एक्टिविटीज़ हमें एक जगह पे मेंशन करनी पड़ती है। हमारे जो वर्किंग आवर्स होते हैं उनको स्प्लिट करके, सो ये सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पे स्टोर की जाती है। उसके लिए मल्टीपल टूल्स यूज़ किए जाते हैं इंडस्ट्री में, जैसे जीरा एक टूल है, Azure DevOps है। सो मल्टीपल टूल्स मार्केट में अवेलेबल है। किसी भी एक टूल की इंफॉर्मेशन आपको हो तो बाकी के टूल्स आप सीख सकते हैं। अगेन हर एक टूल के लिए यूट्यूब पे फ्री कोर्सेस अवेलेबल है। मैं बस आपको एक ओवरव्यू दूंगा उस टूल का कि वो कैसे काम करता है, कैसे दिखता है, बट आफ्टरवर्ड्स आप किसी भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके उसको पढ़ के कर सकते हो। ऐसा कोई ये नहीं है, वो डिफ़िकल्ट नहीं है, ईजी होता है। बस मेरा कहना ये है कि उस टूल के रिगार्डिंग जब आप एक्चुअली इंटरव्यू देना स्टार्ट करोगे उससे पहले थोड़ी इन्फॉर्मेशन उस टूल के रिगार्डिंग भी रखो, बाकी के नॉलेज के साथ जो आप लर्न कर रहे हो। जैसे SQL लर्न करोगे या एक्सेल लर्न किया आपने, पाइथन लर्न करोगे, पावर BI लर्न करोगे, अलॉन्ग विथ ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज आल्सो needed, or if you having those information then it is plus point for you. Actually जब आप कंपनी ज्वाइन करोगे तो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। So today we will start from the introduction to Power BI, and from tomorrow onwards we will start in actual Power BI desktop tool, ठीक है। Just a minute, बैकग्राउंड नॉइज ज़्यादा आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। मेरी आवाज आ रही सबको? Yes, sir. Yes, sir. Now it's clear, sir. Okay, I'm sharing my screen. स्क्रीन विजिबल है सबको? Okay, sir. Yes. Yes. Okay, so we'll start with this concept called what is business intelligence, right? ये concept का आपने कभी नाम सुना है? this term कभी सुनी है आपने, business intelligence? No, sir. किसी ने भी नहीं सुनी? नो सर। सब सुना है सर, लेकिन पता नहीं सर क्या है वो। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। सो बिजनेस इंटेलिजेंस एक सेट ऑफ टेक्नोलॉजी होती है, राइट। बिजनेस इंटेलिजेंस मतलब एक टेक्नोलॉजी है जो क्या करती है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो रहेगा उस ऑर्गेनाइजेशन का जो डेटा रहेगा उस डेटा को एनालाइज करेगा। उस डेटा को एनालाइज करने के बाद उसको एक प्रिडिक्टिव या डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करेगा उस डेटा का, एंड उस डेटा के ऊपर
रिपोर्ट जनरेट करेगा, जो रिपोर्ट्स यूज करके वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन उनकी कंपनी की ग्रोथ के लिए डिसीजन लेगी, राइट। इन शॉर्ट, मान लो कि एक कंपनी है, वो कंपनी क्या कर रही है, उनका जो डेटा है डे टू डे ऑपरेशंस का, कि उनका सेल कितना हो रहा है, उनके कस्टमर कौन कौन है, कितना वो कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो सारी इंफॉर्मेशन कंपनी एक जगह पे स्टोर करती है, राइट। तो बिजनेस इंटेलिजेंस क्या करता है, उस डेटा को एनालाइज करता है, एनालाइज करके रिपोर्ट जनरेशंस करता है, एंड रिपोर्ट जनरेट करने के बाद उस रिपोर्ट्स को जो हायर मैनेजमेंट होती है कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की, वो ऑर्गेनाइजेशन की हायर मैनेजमेंट उस रिपोर्ट्स को यूज करके एक डिसीजन लेती है कि कंपनी की ग्रोथ के लिए क्या करना चाहिए। तो ये जो प्रोसेस है कंपनी का डेटा एनालाइज करने से लेके जो हायर मैनेजमेंट है वो एक डिसीजन लेने तक का, ये सारी जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम कहेंगे बिजनेस इंटेलिजेंस, राइट। सो बिजनेस इंटेलिजेंस इज नथिंग बट is a data analytical approach answering the questions what was happening and what is happening. इन दोनों का मतलब क्या है, what was happening and what is happening. What was happening in sense क्या हो चुका है और क्या हो रहा है। अगर दोनों क्वेश्चंस को मैं देखूं तो एक क्वेश्चन पास्ट के डेटा के ऊपर डिपेंड करता है, और सेकंड क्वेश्चन जो है, जो अभी डेटा जनरेट हो रहा है करंट, उस डेटा के ऊपर वो क्वेश्चन है। लेकिन थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है कि क्या होने वाला है, व्हाट विल बी हैपनिंग, वो क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है। सो बिजनेस इंटेलिजेंस में डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस होता है। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस इन द सेंस हमारा पास जो पास्ट डेटा अवेलेबल होगा, उस पास्ट डेटा को यूज करके मैं एनालिसिस करूंगा, उसे कहा जाता है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। एक और कंसेप्ट आती है प्रिडिक्टिव एनालिसिस। प्रिडिक्टिव एनालिसिस को क्या कहा जाता है, फोरकास्टिंग। मैं AI/ML लैंग्वेजेस को यूज करते, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके फोरकास्ट करता हूँ, फ्यूचर प्रिडिक्ट करता हूँ। उस प्रिडिक्शंस को प्रिडिक्टिव एनालिसिस कहते हैं, फोरकास्टिंग कहते हैं। बट जनरल बिजनेस इंटेलिजेंस या पावर BI जो भी डेटा एनालिसिस टूल्स होते हैं, उनमें प्रिडिक्टिव एनालिसिस नहीं होता, वी डूइंग डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। हम पास्ट डेटा के ऊपर या करंट डेटा के ऊपर एनालिसिस करके रिपोर्ट जनरेशंस करते हैं, एंड उन डेटा को यूज करके हायर मैनेजमेंट्स या कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन जो भी उन रिपोर्ट्स को कंज्यूम करने वाला है, वो उन रिपोर्ट्स को, पास्ट डेटा के ऊपर बने हुए रिपोर्ट्स को यूज करके कंपनी की ग्रोथ के लिए डिसीजन लेगा। ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल बताऊं तो लेट्स से मेरे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग एज ग्रुप के एम्प्लॉय काम करता है। लेट्स से 18 से 25 एज ग्रुप का एक एम्प्लॉय का एज ग्रुप है, वो उस कंपनी में काम करता है। देन 25 से 30 का एक एज ग्रुप है, 30 to 35 का एक एज ग्रुप है। ऐसे मल्टीपल एज ग्रुप की पीपल उस कंपनी में काम करते हैं, और कंपनी ने हर एक एम्प्लॉय की एज ग्रुप के हिसाब से जो ग्रुपिंग किया हुआ है, उसके हिसाब से कंपनी हर एक एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी कैप्चर करती है। वो ऑर्गेनाइजेशन हर एक एम्प्लॉय का कितना प्रोडक्टिविटी आ रहा है डेली, 8-9 घंटे का जो भी उनका शिफ्ट है, उस शिफ्ट में पर्टिकुलर एम्प्लॉय से कितना प्रोडक्टिविटी आ रहा है, ये कंपनी हर एक एम्प्लॉय के लिए कैप्चर कर रही है इन्फॉर्मेशंस। इन शॉर्ट, कंपनी हर एक एम्प्लॉय का डेटा कैप्चर कर रही है कि दिस पर्टिकुलर एम्प्लॉय कितना प्रोडक्टिविटी हमें दे रहा है डेली। तो जब कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने फिर एनालिसिस किया उस डेटा का, और उन्हें फाइंड आउट ये हुआ कि जो यंग एज ग्रुप है, 18 से 25 एज ग्रुप जो है कंपनी में, उनका प्रोडक्टिविटी कम है कंपेयर टू बाकी की एज ग्रुप के एम्प्लॉय से। अगर वैसे देखा जाए तो 18 से 25 एज ग्रुप वाला एम्प्लॉय जो है वो यंग एम्प्लॉय है, उनका प्रोडक्टिविटी ज़्यादा चाहिए था। बट एक्चुअल में कंपनी ने जब डेटा एनालिसिस किया तो कंपनी को क्या फाइंड आउट हुआ कि उनका प्रोडक्टिविटी कम है। ये कंपनी को कैसे पता चला, जब कंपनी ने जो उनके पास डेटा अवेलेबल था उस डेटा को उन्होंने क्या किया, एनालाइज किया। अभी एनालाइज किया, फिर उन्होंने डेटा एनालिसिस
डेटा एनालाइज करने के लिए जो इंजीनियर है, जैसे जिसको हम बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर भी बोल सकते हैं, बीआई डेवलपर बोल सकते हैं, डेटा एनालिस्ट बोल सकते हैं, जो भी पर्सन है उसने एनालिसिस करके ये इंफॉर्मेशन कंपनी को दिखाई कि देखो दिस पर्टिकुलर एज ग्रुप का एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी कम है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से स्टेप कवर हुए? कंपनी ने डेटा कैप्चर किया, उस कैप्चर किए हुए डेटा को डेटा एनालिसिस ने एनालाइज किया एंड रिपोर्ट जनरेट किया। उन रिपोर्ट को हायर मैनेजमेंट ने स्टडी किया और उनको एक फॉल्ट मिला कि 18 से 25 एज ग्रुप के एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी कम है। ये फॉल्ट मिला उस रिपोर्ट को एनालाइज करने से। अभी इसका रूट कॉज क्या है? इसके लिए कंपनी क्या करेगी? कुछ सॉल्यूशन सप्लाई करेगी जिसको यूज करके ये जो प्रोडक्टिविटी है उनको बढ़ाया जाए। तो फिर कंपनी ने क्या डिसीजन लिया? कंपनी ने लेट से एक नोटिस सारे एम्प्लॉय को भेजा और उनको बोला गया कि अभी आज से आपको वर्क प्लेस में मोबाइल फोन लाना अलाउड नहीं है। आपको कंपनी के सिक्योरिटी गेट पे आपके मोबाइल्स जमा करने होंगे और वो मोबाइल्स आपको कंपनी के बाहर जाते टाइम पे वापस से कलेक्ट करने हैं। सो कंपनी ने ये रूल लागू किया कंपनी के अंदर एंड कुछ महीने बाद जब वापस से कंपनी ने डेटा को एनालाइज किया उस पर्टिकुलर रिपोर्ट्स में, देन 18 से 25 एज ग्रुप की एम्प्लॉय की जो प्रोडक्टिविटी थी वो इंक्रीज हुई। सो इसमें ये जो सर्कल है ये कंप्लीट हुआ, राइट? कंपनी ने पहले डेटा को एनालाइज किया, फिर रिपोर्ट्स को जनरेट किया विद द हेल्प ऑफ डेटा एनालिस्ट, उन रिपोर्ट को स्टडी किया, उसमें से फॉल्ट फाइंड आउट किए, फॉल्ट फाइंड आउट करके एक उन्होंने रूट कॉज इम्प्लीमेंट किया कि जो फॉल्ट्स है उनको कैसे हम दूर कर सकते हैं। ये उन्होंने इंटरनल डिस्कशन लेके कुछ सॉल्यूशंस फाइंड आउट किया, फिर सॉल्यूशन फाइंड आउट करके उसको इम्प्लीमेंट किया एंड आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन कुछ टाइम के बाद उनको वो रिजल्ट मिला। तो ये जो होल प्रोसेस है इसको हम क्या कहेंगे? बिजनेस इंटेलिजेंस कहेंगे। कंसेप्ट समझ में आई बिजनेस इंटेलिजेंस की? Okay. Okay, so now next topic is who is business intelligence developer। ये जो business intelligence developer है ये क्या काम करता है, ये कौन होता है? So business intelligence developer कौन होता है? वो एक इंजीनियर है जो क्या करता है? It is in charge of developing, deploying and maintaining BI interface। वो एक इंचार्ज है, किसका इंचार्ज है? बिजनेस इंटेलिजेंस को डेवलप करना, डिप्लॉय करना एंड उनको मेंटेन किया। बेसिकली दिस बीआई इंटरफेस, अगर मैं पावर बीआई की बात करूं तो पावर बीआई एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है, ठीक है, जिसका यूज करके हम रिपोर्ट जनरेट करते हैं। तो पावर बीआई में बीआई डेवलपर का रोल क्या होगा? पावर बीआई का यूज करके रिपोर्ट जनरेट करना, उन रिपोर्ट्स को जो कंज्यूम करने वाले हैं उन रिपोर्ट्स को मल्टीपल यूजर्स उनको शेयर करना और रिपोर्ट्स के ऊपर सिक्योरिटी मेंटेन रखना कि कौन से रिपोर्ट किनको दिखाने हैं, कौन से रिपोर्ट किनको नहीं दिखाने। जैसे कि हायर मैनेजमेंट लेवल के रिपोर्ट्स रहेंगे तो वो सिर्फ सीईओ के लिए दिखाने चाहिए, या मेरे पास मल्टीपल एक ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है तो डिपार्टमेंटल डेटा उसी डिपार्टमेंट के एचओडी को दिखना चाहिए, या किसी दूसरे डिपार्टमेंट के एचओडी को दूसरे डिपार्टमेंट का डेटा नहीं दिखना चाहिए। लेट्स से एचआर का डेटा है जिसमें अलग अलग एम्प्लॉयज की सैलरीज की इंफॉर्मेशंस मेंटेन होती है, तो ये इंफॉर्मेशंस हमें लीक नहीं करनी होती, वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, तो ये बाकी के लोगों को नहीं दिखना चाहिए। तो ऐसा जो डेटा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू काम होता है ये सारा अप्लाई करना ये इस बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर का काम रहेगा। अंडरस्टैंड हो रहा है? यस सर। ओके, सो बिजनेस इंटेलिजेंस में या बिजनेस इंटेलिजेंस सिस्टम में, बीआई सिस्टम में कुछ लेयर्स होते हैं। लेयर्स इन द सेंस कि डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में काम होता है, जिसमें से फर्स्ट लेयर आता है डेटा सोर्स लेयर्स, सेकंड लेयर आता है वेयर हाउस लेयर एंड थर्ड लेयर आता है रिपोर्टिंग लेयर।
अभी ये डेटा सोर्स लेयर क्या है? डेटा सोर्स लेयर मतलब मेरा जो डेटा है या मेरी कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल ले तो ऑर्गेनाइजेशन का डेटा किसी एक जगह पे वो स्टोर नहीं करता। मान लो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन उसका डेटा सीक्वल सर्वर पे कुछ रख रही है, कुछ वो एक्सेल फाइल जनरेट करके उनके लोकल सिस्टम में स्टोर कर रही है, कुछ डेटा क्लाउड पे रख रहे हैं। वो क्लाउड इन द सेंस कि जो ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज अवेलेबल होते हैं, जैसे कि हमारे पास अमेजोन या माइक्रो इनका इसका अमेजोन का एक अवेलेबल होता है और एक कंपनी बिग कंपनी है जिनका भी क्लाउड स्टोरेज अवेलेबल होता है, राइट? जैसे जैसे अमेजोन का आपने ये सुना होगा, आई थिंक AWS। यस, AWS है। या राइट। तो ये क्या होता है? ये क्लाउड स्टोरेजेस होते हैं। क्लाउड स्टोरेजेस मतलब क्या कि मान लो कि कोई ये बड़ी बड़ी कंपनीज के क्या होते हैं? सर्वर्स होते हैं। जैसे कि मान लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन उनका डेटा कहाँ पे स्टोर करती है? सर्वर रूम्स में स्टोर करती है। सर्वर रूम में ये नाम सुना होगा आपने बहुत बार कि ये कंपनी का ये सर्वर है करके, राइट? तो सर्वर बेसिकली क्या होता है कि कंपनी क्या करती है, उनका जो डेटा रहेगा वो डेटा उन सर्वर्स में, वहाँ पे मल्टीपल सिस्टम्स में, कंप्यूटर्स बात करो, मल्टीपल पीसी कनेक्टेड रहते हैं या जो बड़ी बड़ी हार्ड ड्राइव्स को एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, जो यहाँ पे एक स्पेस जनरेट करता है और कंपनी इसका डेटा उन स्पेस में रखते हैं वो, राइट? तो ऐसे इन शॉर्ट अगर ऐसा ही स्टोरेज किसी छोटी कंपनी ने बस उनके लिए किया होगा तो उसको हम एक स्टोरेज कहेंगे। लेकिन अगर ये जो अमेजोन वगैरह है, इनके बहुत बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं, ये सर्वर्स उनको वो कंपनीज को क्या करती है? रेंट पे देती है। मतलब उनको बोला जाता है कि कंपनीज को वो बोलती है कि आपका जो डेटा है वो हमारे सर्वर पे रखो, उसके लिए आपको नॉमिनल पे करना पड़ेगा साइज के हिसाब से, कितना स्टोरेज आपको चाहिए, हम आपको मंथली पे चार्ज करेंगे। तो ये जो कंसेप्ट है कि अगर कोई भी कंपनी उनका डेटा खुद ही संभाल रही है और खुद ही स्टोर कर रही है तो वो ऑन प्रीमाइसेस डेटा हुआ। और जो अमेजोन वगैरह जो बड़ी कंपनी है जिनके बड़े बड़े सर्वर्स है, और ये कंपनी जो है उनका खुद का जो सर्वर था, इंस्टेड ऑफ दिस वो कंपनी क्या करेगी? उनका डेटा इन बड़ी कंपनीज के सर्वर्स पे रखेंगी। तो ये होगा क्लाउड स्टोरेज इन शॉर्ट, ठीक है? ये एक कंसेप्ट है कि ऑन प्रीमाइसेस एंड क्लाउड। ऑन प्रीमाइसेस मतलब क्या कि कंपनीज जो डेटा रहेगा वो कंपनी खुद के सर्वर पे स्टोर करके रखेंगी और डेटा की सिक्योरिटी एंड डेटा का जो साइज वगैरह रहेगा या जो मेंटेनेंस रहेगा वो सारा मेंटेनेंस वो कंपनी खुद करेगी। तो वो हो गया ऑन प्रीमाइसेस। फिर दूसरी कंसेप्ट आती है क्लाउड। तो क्लाउड क्या होगा कि इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग वो सारा डेटा खुद मेंटेन करने से अच्छा, उनका सिक्योरिटी मेंटेन करने से अच्छा, मैं अमेजोन के पास जाऊंगा, उनको बोलूंगा कि मुझे लेट से 10,000 GB का स्टोरेज चाहिए, क्लाउड स्टोरेज चाहिए। तो अमेजोन मुझे बोलेगा कि हाँ मंथली आपको लेट से 10,000 रुपीज या ऐसा कुछ पे करना पड़ेगा मुझे, एंड मैं आपको डेटा के ऊपर सिक्योरिटी भी दूंगा। डेटा स्टोरेज करने के लिए अगर मान लो कि आपका अचानक से साइज आपको बड़ा चाहिए, मुझे 10,000 मेरा फुल हो गया और मुझे अभी थोड़ा साइज बढ़ाना है, तो अगर मेरा लोकल सर्वर रहता तो मुझे वापस से हार्ड ड्राइव परचेस करके लाना पड़ता, शट डाउन करना पड़ता सर्वर, वो कनेक्शंस करना पड़ता, एंड देन वापस से वो सर्वर चालू करना पड़ता। तो हो सकता था कि मेरा उसमें कंपनीज का लॉस भी हो। लेकिन अब क्लाउड स्टोरेज में कैसा है कि वो ऑलरेडी स्टोरेज अवेलेबल होता है, हमें बस जितना चाहिए वो अलॉट किया होता है। तो अगर मुझे स्टोरेज बढ़ाना है तो वो बस हमें जो अलॉट किया हुआ साइज होता है उनको बढ़ा देते हैं। तो हमें ना सर्वर बंद करने की जरूरत होती है, ना कंपनी के जो ऑपरेशंस होते हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम आता है। सो वो कंपेरेटिवली इजी है मेंटेन करना वगैरह, प्लस डेटा सिक्योरिटी भी अमेजोन ही संभालती है। सो ऐसा जो स्टोरेज रहेगा वो क्लाउड स्टोरेज रहेगा। सो ये बताने क्या पीछे मतलब क्या कि मेरा लेट से कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो कुछ डेटा उनके लोकल सर्वर्स पे भी रखती है, कुछ क्लाउड स्टोरेज में रखती है, कुछ डेटा एक्सेल्स में मेंटेन करके उनके लोकल कंप्यूटर्स पे स्टोर कर सकती है, राइट?
या कोई कुछ डेटा ऐसा है कि कुछ डेटा किसी दूसरी जगह पे जनरेट हो रहा है और वो वहां से उनको कलेक्ट करना पड़ रहा है। सो मतलब इन शॉर्ट एक ऑर्गेनाइजेशन डेटा मल्टीपल जगह पे स्टोर करके रख सकती है कि एक जगह एक डेटा यहाँ पे, एक डेटा वहां पे, ऐसा मल्टीपल जगह पे उन्होंने स्टोरेज करके रखा है। तो इस डेटा सोर्स लेयर्स में क्या होता है, मैं इन सारे डेटा सोर्स को कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, इन सारे डेटा सोर्स को कनेक्ट करता हूँ और उनको एक जगह पे लेके आता हूँ, राइट। इन डेटा सोर्स लेयर्स में क्या हुआ, मेरा डेटा जो है वो अलग अलग जगह पे स्टोर है। फिर नेक्स्ट जो लेयर है वेयर हाउस लेयर में, उसमें क्या होता है कि मैं इन सारे डेटा सोर्स को कनेक्ट करूंगा, सारा जो डेटा है वो एक जगह पे लेके आऊंगा और उसको एक जगह पे स्टोर करूंगा। लेकिन जब मैं इनको स्टोर करता हूँ तो मैं स्टोर कैसे करता हूँ, मैं इनमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस करता हूँ। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे देखो एक टर्म लिखा हुआ है, एक्सट्रैक्शन, डेटा ट्रांसफॉर्मेशंस एंड लोडिंग। तो यहाँ पे क्या होता है कि मैं डिफरेंट डिफरेंट डेटा सोर्स को कनेक्ट कर रहा हूँ, डेटा को एक जगह पे कलेक्ट कर रहा हूँ, फिर उस कलेक्ट किए हुए डेटा के ऊपर कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस कर रहा हूँ एंड ट्रांसफॉर्म किया हुआ जो डेटा है उसको लोड कर रहा हूँ डेटाबेस में। डेटाबेसेस क्या होते हैं, वेयर हाउस के अंदर, वेयर हाउस एक ऐसे कंसिडर करो कि एक कंटेनर है, बिग कंटेनर, एम्प्टी स्पेस है पूरा, और उस बिग कंटेनर के अंदर मैं छोटे छोटे बॉक्सेस मेंटेन कर रहा हूँ। हर एक बॉक्स में लेट्स से कि मेरे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में मैंने 10 बॉक्स रखे हुए, एक बॉक्स में लेट्स से मैंने एप्पल रखे हुए, दूसरे बॉक्स में लेट्स से पाइनएप्पल रखे हुए, ऐसे मैंने मल्टीपल फ्रूट्स रखे हुए। हर एक बॉक्स जो है वो बॉक्स उस पर्टिकुलर टाइप का जो फ्रूट है वो उसने उस पर्टिकुलर बॉक्स में वो फ्रूट्स अवेलेबल है, दूसरा फ्रूट उसके अंदर नहीं है, राइट। सो मैं उस बॉक्स को, कंटेनर के अंदर जो बॉक्स रखे हुए डिफरेंट डिफरेंट, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स है, तो हर एक बॉक्स को मैं क्या कहूंगा, ये एक डेटाबेस है। और वो जो कंटेनर है वो कंटेनर को क्या कहूंगा, ये एक वेयर हाउस है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है। वेयर हाउस क्या रहेगा, वेयर हाउस के अंदर मल्टीपल डेटाबेसेस रहेंगे। सो डेटाबेस जो होता है, जहां पे हमने एग्जांपल लिया कि जो बॉक्स है जिसमें छोटे छोटे या डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स रखे हुए हैं, लेकिन फ्रूट्स जो है वो एक में एप्पल है, दूसरे में पाइनएप्पल है, पाइनएप्पल और एप्पल एक जगह मिक्स नहीं है। सो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो डेटाबेस है मेरा, उस डेटाबेस के अंदर मैंने क्या किए हुए, फिर इंफॉर्मेशन पुट की। जैसे मान लो मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, एक डिपार्टमेंट फाइनेंस है, एक डिपार्टमेंट एचआर है, एक डिपार्टमेंट प्रोडक्शन है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, डेटाबेस के अंदर इन सारे डिपार्टमेंट्स के लिए जो टेबल्स रहेंगे वो टेबल्स अलग अलग नाम से मैं स्टोर कर दूंगा, ठीक है। तो मैं एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल स्टोर कर सकता हूँ, या हर एक डिपार्टमेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेसेस भी बना सकता हूँ। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस क्या करती है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका एक डेटाबेस बनाओ, और जो टेबल आप स्टोर करोगे उसके अंदर, डेटाबेस के अंदर, उन टेबल्स में हर एक डिपार्टमेंट के लिए जो टेबल्स रहेंगे उनको नाम देके आप स्टोर कर ले सके। दिस इज माय एचआर टेबल, दिस इज माय फाइनेंस टेबल, दिस इज माय प्रोडक्शन टेबल। सो दिस, वो आइडेंटिफायर हो गया कि वो टेबल में क्या इंफॉर्मेशन स्टोर की हुई है। कहने का मेरा मतलब यह है कि जो डेटाबेसेस है, डेटाबेसेस में जो डेटा स्टोर किया जाता है वो डेटा स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ टेबुलर स्ट्रक्चर। टेबुलर स्ट्रक्चर इन द सेंस टेबल्स एंड रो के फॉर्मेट में, एक स्ट्रक्चरल वे में डेटा को स्टोर किया जाता है डेटाबेसेस के अंदर। जैसे कॉमन एग्जांपल है आरडीबीएमएस, हमारी जो सीक्वल है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सीक्वल, जो हम सीक्वल लैंग्वेज बोलते हैं, सीक्वल क्या है, आरडीबीएमएस है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वो क्या करती है, डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स है, उन टेबल्स में अंदर जो डेटा इंफॉर्मेशन स्टोर है, उस इंफॉर्मेशन को सीक्वल के क्यूरीज के थ्रू एक इंटरफेस को में आपको दिखाती है, राइट। हमारा जो सीक्वल आप लोगों का हुआ है ना? यस सर, एसक्यूएल हो गया, एसक्यूएल हो गया ना। तो एसक्यूएल आपने जो आईडी इंस्टॉल किया होगा, आपने कौन सा माई सीक्वल पढ़ा है या माई एसक्यूएल पढ़ा है ना? तो आपने कोई एक आईडी इंस्टॉल किया होगा ना, आईडी इन द सेंस कि एक यूजर इंटरफेस इंस्टॉल किया होगा, और आप उस इंटरफेस में जो क्यूरी लिखते थे वो क्यूरी डेटाबेस को हिट करके वहां से इंफॉर्मेशन आपको एक स्क्रीन के ऊपर दिखाती है ना,
कि इस टेबल में लेट्स से इतने रोज है, ये टेबल में जॉइंट्स के बाद ये आउटपुट चाहिए। सो बैकएंड में क्या हो रहा है कि वो जो क्यूरी है, वो क्यूरी डेटाबेस के अंदर के टेबल्स को हिट करके आपको आउटपुट शो कर रही है ना। इवन जो आपका डेटाबेसेस है, डेटाबेसेस के अंदर जो टेबल्स वहां पे स्टोर थे, वो सारे के सारे टेबल्स एक टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर थे, राइट? वहां पे टेबल्स थे ना। MySQL में आपने जो डेटाबेसेस क्रिएट किए होंगे, जो डेटा स्टोर किया होगा वो एक टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर किया होगा, करेक्ट है? Yes, sir. तो वो जो डेटाबेसेस है, वो जो डेटा स्टोर किया है, वो किस में आता है? दिस इज कम अंडर दिस वेयरहाउस लेयर। नाउ आफ्टर दिस, ये जो फाइनल लेयर है, रिपोर्टिंग लेयर, यहाँ पे जो हम पावर BI डेवलपर्स है या जो भी डेटा एनालिसिस है, उनका काम यहाँ पे होता है, जिसमें क्या होता है, इस प्रोसेस डेटा के ऊपर वो क्या करते हैं, विजुअलाइजेशंस, डैशबोर्ड्स, रिपोर्ट्स क्रिएशन करते हैं यूजिंग डिफरेंट डेटा एनालिसिस टूल लाइक पावर BI, Tableau, Qlik, Cognos, डिफरेंट टूल्स मार्केट में अवेलेबल है, रिपोर्टिंग टूल। सो उनको यूज करके इस प्रोसेस डेटा को ऊपर वो क्या करते हैं, रिपोर्टिंग जनरेट करते हैं इस रिपोर्टिंग लेयर में। सो दिस इज हाउ BI सिस्टम वर्क करता है, एक डेटा सोर्स लेयर से वेयरहाउस लेयर, वेयरहाउस लेयर्स में एक डेटाबेसेस में डेटा स्टोर किया जाता है स्ट्रक्चरल वे में, एंड देन उस स्ट्रक्चरल डेटा के ऊपर रिपोर्टिंग लेयर में जो डिफरेंट टूल्स है, जैसे पावर BI इस स्ट्रक्चर डेटा को कनेक्ट होगा एंड देन मैं पावर BI के अंदर रिपोर्ट जनरेट करूंगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट? मोस्ट ऑफ द टाइम एज ए BI डेवलपर हमारा काम इस रिपोर्टिंग लेयर पे होता है, टूल्स के ऊपर काम करना। बट कभी कभी हमें यहाँ पे इस वेयरहाउस लेयर्स में जो ये डेटाबेसेस होते हैं, जैसे आपने SQL पढ़ा, तो SQL आपने क्यों पढ़ा? आपको इस डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स है, उनके अंदर जो डेटा स्टोर किया हुआ है, उसमें वैलिडेशंस करना रहेगा फॉर दिस डेटा। मान लो कि रिपोर्टिंग लेयर्स में आपने पावर BI टूल यूज कर रहे हो और डेटाबेसेस के अंदर जो टेबल्स है उसके अंदर का डेटा फेच करके आपने रिपोर्ट जनरेट किया। रिपोर्ट जनरेट जो किया, वहां पे लेट्स से आपको सेल की वैल्यू दिखा रही है, लेट्स से 20,000। तो ये 20,000 जो सेल की वैल्यू आ रही है आपको रिपोर्टिंग लेयर में, ये करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, ये क्रॉस चेक कैसे कर सकते हो? आप उस पर्टिकुलर टेबल के ऊपर SQL की क्यूरी लिख के डेटा वैलिडेट कर सकते हो कि डेटाबेस के अंदर डेटा जो है ये एप्रोप्रिएट रिजल्ट दे रहा है मुझे रिपोर्टिंग लेयर में, राइट? इसीलिए आपने ये SQL लैंग्वेज पढ़ा है, ताकि आप डेटा के ऊपर मैनिपुलेशंस नहीं करूंगा मैं, डेटा के ऊपर आप सेलेक्ट स्टेटमेंट की क्यूरी फेच करके डेटा को देख सकते हो, आप डेटा के साथ प्ले कर सकते हो, लेकिन मैनिपुलेट नहीं करेंगे हम, राइट? एज ए डेटा एनालिस्ट हम डेटा के साथ मैनिपुलेशंस नहीं करते, हम बस डेटा को यूज करते, हम बस डेटा को देखते, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको उनका डेटा जो है वो डिलीट करने नहीं देगी या कोई ऐड करने नहीं देगी। आपको बस एक्सेस दिया जाता है कि आप डेटा को देखो एंड वैलिडेट करो आपके रिपोर्टिंग लेयर के साथ, ठीक है? इसलिए मोस्टली हम फोकस करते हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट पे SQL में। ऑब्वियसली जो हमारी DML कमांड्स है, हमने डेटा मैनिपुलेशंस कमांड्स जो होती है, कौन सी कमांड्स है डेटा मैनिपुलेशंस में? इंसर्ट, डिलीट, अपडेट। यस, राइट, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, ये जो कमांड्स होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, DML कमांड्स, राइट? सो DML कमांड्स बेसिकली क्या करती है, डेटा के स्ट्रक्चर्स में चेंजेस करती है ना। आप डेटा को डिलीट करते हो, अपडेट करते हो या मॉडिफाई करते हो, इसलिए उनको मैनिपुलेशंस कहा जाता है। ये मैनिपुलेशंस मोस्टली इन एक्चुअल लाइफ, अगर आपका जॉब रोल प्योरली डेटा साइड है, एज ए डेटा इंजीनियर है, जिसमें आपको वेयरहाउसेस एंड डेटाबेसेस के ऊपर प्रॉपरली काम करना है या SQL बेस आपका रोल है, तो आप उनको यूज करोगे। लेकिन अगर आपका रोल यहाँ पे रिपोर्टिंग लेयर के अंदर एज अ BI डेवलपर है, तो आप मोस्टली सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज करोगे, DML स्टेटमेंट आप यूज नहीं करोगे या उसका एक्सेस आपके पास नहीं होगा। समझ में आ रहा है ये? यस सर। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज कि पावर BI क्या है, पावर BI
किस लिए हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे, इसका एक इंट्रोडक्टरी पीपीटी ये मैं ये पीपीटी भी हमारे ग्रुप में अपलोड कर लूंगा आफ्टर द क्लास, आप इसको पढ़ सकते हो। इसमें थोड़ा एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है पावर बीआई के रिगार्डिंग। इफ वांटेड टू शो यू पावर बीआई, तो पावर बीआई क्या है? पावर बीआई एक डेटा एनालाइज या विजुअलाइजेशन टूल है जो 2015 से मार्केट में है। ये कहाँ से है? ये माइक्रोसॉफ्ट से है, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है पावर बीआई। अगर मैं पावर बीआई के कंपैरिजन में बात करूं अदर टूल्स की, तो अदर टूल भी मार्केट में अवेलेबल है, जैसे टैबलू है, क्लिक है, IBM कॉग्नोज है, लूकर है, देन ऐसे मल्टीपल टूल्स अवेलेबल है मार्केट में। लेकिन पावर बीआई मोस्ट प्रेफरेबल टूल है, लीड करता है पावर बीआई इन सारे टूल्स को इन शॉर्ट, क्योंकि पावर बीआई के यूजर्स बहुत ज़्यादा है अभी। इसका मेन रीज़न क्या है? क्योंकि पावर बीआई ये एक ऐसी कंपनी से आता है जो बहुत समय से मार्केट में है। इनका कॉमन एग्जांपल जो माइक्रोसॉफ्ट है, इसका कॉमन जो टूल हम सब लोग यूज करते हैं बहुत टाइम से, वो है एक्सेल, राइट? एक्सेल आल्सो कम फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, राइट? लेकिन बहुत मल्टीपल, मैं बोल रहा हूँ कि सारी कंपनियां एक्सेल यूज करती है, राइट? तो एक टूल के ऊपर जो भरोसा होता है लोगों का कि उसका एक यूज करने का एक वे होता है, प्लस किसी भी टूल को, किसी भी प्रोडक्ट की जो सर्विसेज होती है कि अगर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कोई बग आ जाए या आपको कोई सर्विस अवेलेबल चाहिए या कोई कस्टमर केयर चाहिए, ये सारी जो इन्फॉर्मेशंस होती है, ये सर्विसेज जो होती है, वो माइक्रोसॉफ्ट की अच्छी है, उनका अपडेट्स अच्छा है, राइट? टूल, ये जो पावर बीआई टूल है ये मंथली अपडेट होता है, नए नए फीचर्स इसमें ऐड होते जाते हैं। इनका एक हेलो हेलो सर। हाँ बोलो सर, डेटा एनालिस्ट की जॉब में सर सबसे ज्यादा क्या यूज होता है सर? एसक्यूएल, एक्सेल या पाइथन? सब कुछ यूज होता है, ऐसा पर्टिकुलर नहीं है, वो केस टू केस डिपेंड करता है कि आपका जो और आपका रोल कैसा है, उसके ऊपर भी मैटर करता है। आप प्योरली अगर पावर बीआई के लिए काम कर रहे हो तो पावर बीआई पे ज्यादा काम होगा, बाकी के इसकी पे कम होगा। आप एज ए डेटा एनालिस्ट काम कर रहे हो, किसी स्पेसिफिक टूल के लिए नहीं कर रहे हो, तो सब कुछ आपको करना पड़ेगा। माइट बी इट इंक्लूड्स पावर बीआई के साथ साथ कोई अदर टूल्स भी हो जो कंपनी यूज करती है, वो आपको ट्रेनिंग देगा और वो टूल पे काम करना पड़ेगा। सो इट डजेंट मैटर। मैं बस ये बोलूँगा कि जितना आप नॉलेज यहाँ पे गैदर कर रहे हो, जैसे सीक्वल है, पाइथन है, एक्सेल है, तो ये सारे प्लस पॉइंट है आपके लिए। जितना हो सके इंफॉर्मेशन, जितना हो सके पकड़ इन पे बना के रखना। इंटरव्यू के टाइम पे माइट भी जो जॉब प्रोफाइल आपको ऑफर होने वाली है वहाँ पे पाइथन रिलेटेड कुछ काम है जो पावर बीआई में यूज होता है, ऐसा उनका कोई रिक्वायरमेंट रहेगा। सो इट डिपेंड्स, इट टोटली डिपेंड अपॉन हाउ एक्चुअल सिनेरियोज की आपका प्रोजेक्ट कैसा है, आपका क्लाइंट कैसा है और उनकी रिक्वायरमेंट कैसी है, उसके ऊपर ही टोटली डिपेंड करता है कि हर एक जो टूल आपने सीखा हुआ है वो आपको कितना और कैसे यूज होगा। हेलो सर। ठीक है, बस एज अ डेटा एनालिस्ट आप ये जो जितना आपने पढ़ा हुआ है सारे टूल्स, बस उनकी प्रैक्टिस करते रहो, उन पे पकड़ बनाए रखो। जब आप किसी एक पर्टिकुलर जॉब में ज्वाइन हो जाओगे, फिर वहाँ के हिसाब से तो बाद में स्किल्स आप डेवलप कर ही लोगे, लेकिन जो पढ़ा है जब तक इंटरव्यूज चल रहे हैं तब तक तो एटलीस्ट सारा जो जितना पढ़ा है आपने वो सारे आपको प्रैक्टिस एंड ये करना ही पड़ेगा कि हुज नोज ना कि किस कंपनी को क्या रिक्वायरमेंट हो, राइट? ठीक है। सो पावर बीआई 2015 से मार्केट में है। मैं ये बोल रहा था कि दिस इज केम फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट, तो माइक्रोसॉफ्ट एक ट्रस्ट फैक्टर्स है। पावर बीआई की एक कम्युनिटी भी है जहाँ पे अलग अलग सुपर यूजर्स अवेलेबल होते हैं। अगर आप किसी सिनेरियोज में स्टक हो जाते हो या कोई समझ में नहीं आता आपको कि ये कैसे रिजॉल्व करना है, तो आप आपकी क्यूरीज वगैरह जो है वो वहाँ पे कम्युनिटीज पे डाल सकते हो एंड आफ्टरवर्ड्स वहाँ के सुपर यूजर्स आपको रिवर्ट करते हैं। डेफिनेटली वहाँ पे रिवर्ट्स आता है कि ये पर्टिकुलर सिनेरियोज को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो
प्लस एक और अच्छी बात पावर बीआई की रिगार्डिंग की आपको इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन जो है सिनेरियोज के रिगार्डिंग या किसी पर्टिकुलर ऑप्शन के रिगार्डिंग, तो यूट्यूब्स पे या जनरली गूगल पे, मैं कहूँगा इंटरनेट पे हर एक कंसेप्ट के लिए लॉट्स ऑफ वीडियोस एंड लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. सो दैट्स वाई कि पावर बीआई में जितने भी इश्यूज आते हैं लोग ऑनलाइन डालते हैं, और आप अगर किसी सेम इश्यूज में अटक जाते हो तो आपको सॉल्यूशन जल्दी मिल जाता है यहाँ पे. तो वो एक बेनिफिट है पावर बीआई का, राइट. दूसरा जस्ट ये एक इंट्रोडक्टरी पीपीटी है कि पावर बीआई क्या करता है, कैन ऑल दिस थिंग्स. हम एक्चुअल में प्रैक्टिकली ये सब देखने वाले हैं कि कैसे टूल वर्क होगा, कैसे काम करेगा. इस ओवरऑल पीपीटी में दिस 9 नंबर की जो स्लाइड है ये इंपॉर्टेंट है. कभी कभी इंटरव्यू में आपको ये कंपोनेंट्स पूछे जाते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ पावर बीआई. ईच कंपोनेंट जो है पावर क्यूरी, पावर पिवोट, ये सारे कंपोनेंट्स हम देखने वाले हैं. जब जो कंपोनेंट शुरू करेंगे हम टीचिंग के लिए या पढ़ने के लिए, उस टाइम पे मैं बताऊंगा दिस इज द वन ऑफ कंपोनेंट्स वी सॉ इन इंट्रोडक्टरी पीपीटी. जैसे हम पहला कंपोनेंट पावर क्यूरी जो माइट बी हम फ्रॉम टुमारो वी विल गोइंग टू स्टार्ट, वो पावर क्यूरी हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं. सो ये 9 नंबर का स्लाइड जो है वो एक इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट करके रखना, ठीक है. ये कुछ वर्जन्स अवेलेबल है पावर बीआई के, जैसे पावर बीआई डेस्कटॉप जो हम डाउनलोड करने वाले हैं, जिसपे हम प्रैक्टिस करने वाले हैं. ये एक फ्री टूल है पावर बीआई डेस्कटॉप फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट. कहाँ पे मिलेगा आपको ये? आपके लैपटॉप में जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर रहेगा वहाँ पे डायरेक्टली स्टोर पे जाके जस्ट सर्च, सॉरी मेरा ये कंपनी का लैपटॉप है तो यहाँ पे सब ब्लॉक है. तो नॉर्मली जब आप स्टोर ओपन करोगे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, वहाँ पे आप सर्च करोगे पावर बीआई डेस्कटॉप, तो वो एप्लीकेशन वहाँ पे आ जाएगा, वहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हो उसको. अदरवाइज जिन को वो ऑप्शंस नहीं आएगा तो आप सिंपली यहाँ पे डाल सकते हो. जैसे मैं यहाँ पे डाला कि माइक्रोसॉफ्ट या पावर बीआई डाउनलोड,